Welcome viewers. So in this video we are going to discuss the GAT part, as I already have been made the video over English part. So in this video I will tell you about the science part, your geography, history, economics, politics, politics, where to from where you have to do polity, from which sources you can do current affairs. So in this video I am going to cover all GAT part, as already I have been made the video in the on the English part separately, so you can watch it. So we will discuss starting from the science part. Okay, so first of all let me start with the discussion of science. So as you know, there are 50 questions of science, and out of 50 questions, I believe if you read all the science portion of ninth and 10th, it is not so hard, as you are a PCM student or PCB. ठीक है, so you already have been covered this, that is your biology. Okay, ninth 10th biology, your chemistry, as well as your physics. So these bio and chemistry, these two subjects comprises 25 questions, and physics around 25 questions. So 25, 25, 50 questions. So out of 50 questions, I believe you can easily do 40 plus questions. Okay, in the English video I already told you that out of 50 questions you can able to do 35 plus questions well, if you followed that strategy which I have been told you. So those 35 questions and here 40 questions, you will get 75 questions. And this 75 questions, if I talk about apart from science and English portion, the portion that is left is your geography portion is left, your history portion, your polity, economy, and current affair. So these will constitute 50 questions. So 50 questions from this part, 50 from English, and 50 from science section. So already you have been attempted 75 questions from the English and science section. 75 questions are correct. Okay. Now out of 50 questions, I will tell you that sources which you can do easily. You can do around 20 questions, and 20 questions are really enough in this part. So if you attempt 95 questions, and out of 95 questions, if you are if your questions 85 questions are right, let's say 80. Okay, let's say 80. So 80 questions you will get 320 marks, and the 15 questions negative marking will lead to around, let's say, 20 marks. So out of 20, by minus the 20 you will get 300 marks. Hope you understand what I am trying to say. You will get 300 marks in the GAT section. In the maths video, I have been told you the strategy to score 100 plus marks, minimum 100. So the both will constitute 400 marks. Okay, so this should be the strategy to your written related to science section, your geography, politics, economics, history section. Out of science, you have to attempt 40 questions. If you are able to do more than 40, if you are able to do more than 40, you can. If you are able to do more than 20 questions in geography, history, politics section, you can. But an ideal approach, should I tell you, that is to attempt 40 and 20 questions in a accurate manner with the 100% accuracy. Okay, you don't have to attempt those questions which you are in a dilemma, that is which is right or which is wrong. You should be very confirm to your answer that it should be.
So let me first talk about the science section. I will tell you in brief, I will tell you in detail that what to do for all the subjects. Okay. So for the science section, first of all, I will talk about the biology part. For the biology part, okay. So biology part, as you know, in ninth and 10th, both constitute around 10 to 12 chapters in NCRT. Okay, 10 to 12 chapters. So you have to read NCRTs. You have to read NCRTs. Download the PDF in your phone. You can go through one chapter daily, or one chapter in 2 days or 3 days. Means you can cover 2 to 3 chapter in a week. The chapters are not so detailed, they are in a brief manner, and you already have been studied in ninth and 10th the biology, chemistry, all the subjects, so it will not be hard for you. Okay, so you have to read for the bio as well as for the chemistry. You have to read NCRTs. You have to read NCRTs. Now, if I am telling you to read NCRTs, it does not mean that only you have to read. What I am saying to you, that is, if if I talk about the cell part, the cell chapter, the fundamental unit of life, so the in the cell chapter you will get to know about the discoverer, Robert Hooke, 1665. Then in the box part, there are lots of boxes in the book which will give you an additional information. I think you have been seen this. There are some boxes in the blue part, in the uh, just in the right or left of the page, to get an additional information. And like in those boxes you will get to know uh, Skleden and Swan theory, ठीक है. Then Robert Brown nucleus. So all these things in that part you will get to know. Now what to do, that is, whatever you are reading in the NCRTs, the main important point which you think, you have to note down in your notebook. In which way? Like you have mentioned your chapter cell, then the first point, that is discoverer, so you have to write discoverer. Who is discoverer? Write the name, then in year, then your why, which way, ठीक है. Slice, bark of tree, ठीक है, bark of tree. So now Robert Hooke discover what? Dead cell, not living cell. So you have to mention this point as well. So the small things which are in the notebook, you have to write down in your notebook in the point format, such that it will be your notes, and at the time of exam you will able to revise that. Because for the revision part you don't need any other sources, you have to revise whatever you have written in your notebook as a notes. So for the bio part, for the chemistry part, you have to read NCRTs. I have been told you. And NCRTs how to read? जो जो NCRT में तुमने पढ़ा है उसको पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है. पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, इन पॉइंट्स फॉर्मेट इन योर नोटबुक. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फॉर द साइंस, फॉर द बायोलॉजी एंड फॉर द केमिस्ट्री पार्ट, सिर्फ अभी इतना करना. अभी मैं और बताऊंगा व्हाट टू डू नेक्स्ट. ओके. Now let me discuss about what that is physics section. For the physics section, that is, you can follow a playlist of any teacher on notebook, like I did by the RS sir. You know about RS sir, that is the teacher who is the teacher of Air Force, ठीक है. तो वो बहुत ही अच्छे लेवल का फिजिक्स कराते हैं. यू कैन गो थ्रू डैट. अगर आपको वो पसंद नहीं आते हैं, अगर उनका टीचिंग आपको पसंद नहीं आता, वे ऑफ टीचिंग, देन यू कैन स्विच टू एनी अदर टीचर ऑन द यूट्यूब विच विल डिफाइन यू द फिजिक्स. ओके, क्योंकि फिजिक्स इतना डीप नहीं आता है इंडिया में एज कम्पेयर टू एयरफोर्स अग्निवीर, ठीक है. सो फॉर द फिजिक्स पार्ट यू कैन टेक एनी चैनल जिसने फिजिक्स
कंप्लीट करा रखी हो, ठीक है। अब जो जो वो करा रहा है उनके नोट्स भी तुम्हें बनाने हैं। एंड वन मोर थिंग यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ तुम कुछ भी पढ़ रहे हो उसको कॉपी पे लिखो, सच दैट यू कैन रिवाइज इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ सीरीज फॉर यू, ठीक है। इन दैट सीरीज इन दैट सीरीज in that series, really I am telling you that series will help you a lot. I can assure you, you will get 30 plus questions out of 50. Can you imagine 30 plus questions out of 50? I can guarantee you by that series. I don't know how many videos will be there, but that will take time. Actually, I am preparing for that. I am making notes, I am making PPT for that part, so it will take time, but really it will be beneficial for you, that I will cover whole science section for you. So in that science section, what I am going to cover, that is your NDA, CDS, CAPF, previous year science questions. So what I am going to make, that is I will make video on the NDA 2023, CDS 2023, CAPF 2023 science PYQs. Okay, science PYQs. Then I will move to NDA 1 2023, CDS 1 2023. So there will be 2023, 2022, 2021, even up to I think 2018. So around 5-year question paper. Like, can you imagine 5-year question papers? So what I am going to take to you, that is 5-year question paper, and in 1 year there are 2 paper. So 2 paper of NDA in a year, 2 paper of CDS in a year, and 1 paper of CAPF. So 5 paper in a year, and for the 5 year there will be 25 papers. Now you can imagine, I am covering you 25 papers, 25 previous year papers of science. So do you think out of 25 papers there will be any question which you will not able to attempt? भाई एक पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एक पेपर में 50 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के। एंड इन डेट 50 क्वेश्चंस आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ आपको जो 50 क्वेश्चन आए होंगे सिर्फ वो कराऊंगा? नो। सपोज करो उसने वेवलेंथ पूछी कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है, तो मैं आपको उसके साथ साथ वेवलेंथ की पूरी सीरीज़ बताऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा कि इसमें ये जो वेवलेंथ्स होती हैं इनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशनल। All things will be based on your PYQs. I will cover whole PYQs. That's why I am telling you not to worry about science section. जितना मैं बता रहा हूँ साइंस के लिए सिर्फ इतना कर लो, ठीक है। साइंस के लिए जो मैंने अभी NCERTs को पढ़ना बताया सिर्फ उतना कर लो अभी। NCERTs बायोकेमिस्ट्री की, देन फिजिक्स की कोई सी भी प्लेलिस्ट लगा लो, आराम से पढ़ते रहो धीरे धीरे। बाकी जो ये मेरा 25 पेपर्स जो मैं कराऊंगा PYQs के, ये सीरीज़ में ले आऊँगा। एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, ओके। सो दैट विल टेक टाइम। सो आई विल कवर होल साइंस सेक्शन, PYQs, your all PYQs of science section by this channel. So you can subscribe it, later you will get. Now let me discuss the geography part. देखो भाई, अगर आपका मैथ्स अच्छा है थोड़ा बहुत, ठीक है, 100 स्कोर कर पा रहे हो, तुम्हारा साइंस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन से तुम 75 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सो देयर विल बी अ थिंग विच आई विल टेल यू, दैट इज नॉट टू फोकस मोर इन जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। देखो इन पे इतना फोकस मत करना। इंस्टेड ऑफ जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आप लोग जितना अपने एफर्ट्स दे सकते हो वो अपना इंग्लिश पार्ट पे दे देना। इंग्लिश पे साइंस सेक्शन कवर हो जाएगा बहुत ईजिली, और मैथ्स की प्रैक्टिस पे, मतलब जितना तुम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स में टाइम दोगे ना, उसके बजाय अगर मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, PYQs कर लो, या फिर इंग्लिश के रूल्स पढ़ लो अच्छे से, या और चीज़ें कर लो, तो वो चीज़ें ठीक है। सो नाउ व्हाट टू डू, डैट इज़ आप अगर करना चाहो तो ज्योग्राफी कर सकते हो किसी भी चैनल से, यूट्यूब के किसी भी चैनल से
कई सारी प्लेलिस्ट पड़ी होती हैं, वहाँ से कर लो। और इवन मैं बोलूँगा हिस्ट्री बिल्कुल छूना ही मत, ठीक है। हिस्ट्री मत छुओ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, पूरी छोड़ दो। मैं पूरी छोड़ के जाता था। इकोनॉमिक्स पूरी छोड़ के जाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं कभी। मैंने ज्योग्राफी की है और पॉलिटिक्स की है। पॉलिटी जो होगा ना वो तुम्हारा इंटरेस्टिंग है, पॉलिटी पढ़ सकते हो। किसी भी यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जहाँ से तुमको पढ़ना अच्छा लगता हो वहाँ पे चले जाना। आपकी 25-30 वीडियोस होंगी पॉलिटी की, या 15-20 वीडियोस होंगी। कोई सी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, आराम से कोर्स कंप्लीट करना 2 महीने में, 3 महीने में। ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स ही करना, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुमको सिर्फ 400 प्लस स्कोर करना है। कौन सा तुमको AIR 1 आना है? अरे भाई, रिकमेंड होने के बाद अपना अकेडमी जाना। क्या करोगे 600 प्लस नंबर लाके? SSB तो हो पहले। 600 ले आओगे क्या फ़ायदा? अरे SSB होनी चाहिए भाई। चाहे तुम्हारे मार्क्स 360 हों, SSB क्लियर हो, अकेडमी चले जाओ, दैट विल बी बेटर ना। नाउ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए मैं कोई सोर्स नहीं बताऊंगा, अगर आपका मन है तो तुम पढ़ सकते हो। बट हाँ, ज्योग्राफी कर सकते हो, पॉलिटिक्स कर सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से। कई सारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। लाइक फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है, वहाँ पे। और मतलब यार कैसे भी डाल देना, पॉलिटी, पॉलिटी फॉर CDS NDA, फॉर CDS NDA, ठीक है, पॉलिटी फॉर NDA। वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे पढ़ लेना, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। भाई देखो, करंट अफेयर्स के लिए ना एक CDS जर्नी का चैनल है, अनुराग भैया का। और एक है इनसाइट SSB, इनसाइट SSB। यहाँ से कर जाना, CDS जर्नी, इनसाइट SSB। जितनी वीडियोस आए, 6 से 7 वीडियोस यहाँ होंगी, आई थिंक 6 से 7 वीडियोस इधर होंगी। एट दी एंड जो आपके 1 से 2 महीना होगा ना, 1 से 2 महीने एंड में आपको सिर्फ ये 2 महीने में ये चीज़ें फॉलो करनी है। ये जो वीडियोस लाएंगे, 6-7 वीडियोस इधर, 6-7 वीडियोस इधर, आराम से 1-2 महीने में इन वीडियोस को कंप्लीट करना। आई एम श्योर कि 60 से 70% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर पाओगे तुम लोग यहाँ से। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट 40, ठीक है। 40 करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, GS में क्या करोगे इतना करके। 50 में से अगर 20 कर पा रहे हो बहुत है। उधर 75 कर लिए ना तुमने, सही सही एक्यूरेट। इधर 20 भी अगर कर लिए ठीक ठीक भाई, 95 हो गए। 95 में से अगर 15 गलत भी हो गए, नो इश्यू, 80 तो ठीक है, 400 तब भी आ जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ज़्यादा फोकस मत करो ज्योग्राफी पे, इस पे, हिस्ट्री पे और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पे। क्योंकि यार हिस्ट्री का देखो, मैं एक बात बताता हूँ। एक्चुअली अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ वो मैं एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यू विल नॉट बिलीव कि मैं उन लेक्चर्स को कर रहा हूँ जो पेड में मिलते हैं। तो अब तुम समझ सकते हो कि मैं किन लेक्चर्स को कर रहा हूँ। 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं एंशियंट हिस्ट्री के। मैंने पूरा स्टोन एज कवर किया था 6 घंटे में, 2 क्लासेस में स्टोन एज कवर किया मैंने। और पता है जब CDS में क्वेश्चन आया ना, 2 क्वेश्चन थे स्टोन एज से। भाई एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो उन 6 घंटे की क्लासेस से हो, एक सिंगल क्वेश्चन। अब तुम बहुत सोचो कि यार तुमने 6 घंटे वहाँ पढ़ा, 2 घंटे तुमने रिवाइज भी किया, लेकिन क्वेश्चन आया ही नहीं पेपर में। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एंशियंट हिस्ट्री। इवन कोई सी भी हिस्ट्री, मेडिएवल भी हो चलो ठीक ठाक है, मॉडर्न भी हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमी, तो ये जो इकोनॉमिक्स के एंड में मैराथन्स आती है ना 2-2 घंटे की, या फिर PYQs आ गए इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो उनको कर सकते हो, PYQs को 1-2 बार अटैम्प्ट कर लिया कि कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टर्म है। तो अगर थोड़ा बहुत बेसिक ले लिया ठीक है, लेकिन इसके अंदर डीप मत जाना, इसमें ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। तो तुम्हारे साइंस के लिए मैंने बता दिया क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। आराम से NCERTs को फॉलो करो, नोट्स बनाओ खुद से, ठीक है। जो जो उसमें नोट्स में लिखा हुआ है, देखो भाई NCERTs की बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुमको उन पॉइंट्स को फाइंड करना है। एक एक छोटा छोटा एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा वरना मैं बताता। जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इवन। सो
ठीक है। जो जो वहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं ना, फैक्ट्स को भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कवर करना है। बाकी मैं आपके लिए ना पीवाईक्यू सीरीज़ ले आऊँगा, डोंट वरी। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आई कैन अश्योर यू, यू विल कम टू नो 30 से 35 क्वेश्चंस आपके एनडीए में वहाँ से मिल जाएंगे। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितना मैं आपको कवर कराऊँगा ना उन पीवाईक्यूज से, आई कैन बैट यू कि तुमको कोई पूरे यूट्यूब पे इतना करा दे। मतलब पूरा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को। जितना मैं उन पीवाईक्यूज में, उन 25 पेपर्स में, जो आपको 25 पेपर्स ला के दूंगा ना पिछले 5 साल के, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ, पिछले 5 साल के ये जो पूरे यूपीएससी के जितने पेपर्स हैं, जिनमें ये जो साइंस के क्वेश्चंस आए हैं ना, सबको अच्छे से खोल देंगे। क्यों दिक्कत ले रहे हो? मतलब अच्छे से, बिल्कुल तरीके से। अगर आपसे पूछा गया है ना कि आपके कुछ क्वेश्चन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई क्वेश्चन है छोटा सा, देन बिलीव मी कि मैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी पूरी ना कुंडली निकालने वाला हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, किस में क्या होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ सेल वॉल भी आ जाती है, तो सेल वॉल भी एडिशनल बताऊँगा। अब सेल वॉल में क्या क्या किस किस चीज़ से बनी होती है, किसके अंदर किसकी सेल वॉल होती है, किन किन में पाई जाती है, फंक्शन क्या है सेल वॉल का। ठीक है, सेल वॉल मतलब मीन्स टू से कि बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ मैं। तो साइंस की तरफ से तो आप लोग बिल्कुल भाई कोई कुछ भी दिक्कत मत लेना, जितना मैंने बता दिया साइंस का ऐसे कवर कर लेना। देखो यार, शॉर्ट चीज़ है। आप उधर 100+ ला रहे हो मैथ्स में, आप इंग्लिश में 35+ कर पा रहे हो, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है। यहाँ साइंस में आराम से 40+ कर लोगे। एक एक सिंगल बच्चा जो मैं करूँगा, एक एक सिंगल एस्पिरेंट जो मैं यहाँ कराऊँगा ना, अगर तुम उसको फॉलो कर लोगे, बिलीव मी, जो मैं कराने वाला हूँ उस चीज़ को तुम फॉलो कर लोगे, 40+ क्वेश्चन करके आओगे साइंस में। गारंटी यू, आई कैन गारंटी यू, बिलीव मी। ठीक है, तो वहाँ पे 35, यहाँ 40 कर लोगे यार, नो इशू। फिर क्यों चिंता कर रहे हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी भाई बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया, पढ़ना आपको सिर्फ मैंने स्ट्रेटेजी बताया है। ठीक है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है तो मैं डेली पढ़ना है जो चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है अच्छे से, उनके नोट्स बनाने हैं खुद से। यार एक बार नोट्स बना लो ना अच्छे से, आपके सीडीएस में भी काम देंगे, सीएपीएफ में भी काम देंगे, आगे जितने भी अटैम्प्ट आएंगे, इफ़ यू डोंट एबल टू मेक इट इन दिस अटैम्प्ट, तो वहाँ पे भी काम देंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि भाई इनको फॉलो करो। ठीक है, एक बार अच्छे से नोट्स बना लो। यू हैव टू स्टडी विद योर जेनिथ, यू शुड ऐड दी जेनिथ। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को पीक पे रख दो बिल्कुल दिस टाइम पे। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन नहीं तो मेरे इंस्टा पे पूछ लेना। इंस्टा मेरा आपको जैसे पता ही होगा, its_राजपूत _गर्भित। ठीक है, GARBHIT। सो यू कैन मैसेज मी देयर इफ़ आई सी योर मैसेज, आई सो मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी डाउट है। तो भाई ऐसे कर लेना। ठीक है, और बाकी भाई आराम से देखो। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इस चीज़ के अलावा भी थोड़ा ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट एम शुड नॉट बी ओनली अप टू क्लियरिंग द रिटन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो, एसएसबी भी फेस करना है तुम्हें। और कहीं ना कहीं देखो, एसएसबी छोड़ो, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर लोगे, इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे, अपने करंट इवेंट्स पे तुमको नॉलेज होगी, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स पे नॉलेज होगी, तो थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस आता है, आपको खुद भी लगता है कि हाँ भाई मेरे को कुछ पता है क्या चल रहा है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा फोकस करो, खुद को प्रेजेंट करो। योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी गुड। मतलब आप देखना कि जब मैं पहले वीडियोस बनाता था ना, यू कैन सर्च द वीडियो ऑफ अफगानिस्तान तालिबान इशू। ठीक है, अफगानिस्तान तालिबान इशू इन माई प्ले लिस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई विल टेल यू कि देखो एक बार देखना जरूर। ठीक है, वहाँ पे जाना, अफगानिस्तान तालिबान इशू मैंने वीडियोस बनाई थी, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। एंड इन दैट वीडियो यू कैन फाउंड कि हाउ मच आई वाज हेजिटेटिंग एट दैट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मीन्स यू कैन रियली फील कि मैं इतना ज़्यादा नर्वस था ना, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम। बट नाउ यू कैन सी इन द इंडो यूएसए रिलेशंस, आफ्टर दैट इंडो रशिया रिलेशंस आई मेड, so I made changes in myself. I was able to face
my tongue accept the words, English words. So all these things comes with the passage of time. If you improve your communication skills by communicating with the persons in English, if you are making strategy over something, so all things will improve your personality as well. ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी भाई बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। बाकी पढ़ते रहो, अच्छे से हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, आराम से पढ़ते रहो, जो जो बताया है। ज़्यादा सोर्सेज पे मत भागना, दोबारा बता रहा हूँ, हर वीडियो में यही बोलता हूँ भाई। टेलीग्राम से भी लिया है, वहाँ से भी लिया है, वहाँ से भी PDF लिया है, सबको सॉल्व करेंगे। अरे भाई नहीं करना, साइंस में जितना बताया NCERTs करो, खुद से नोट्स बनाओ, दैट्स एनफ। एनफ। ज्योग्राफी पॉलिटिक्स करनी है, करंट अफेयर मैंने बता दिया, एंड के 2 महीने में करना है बस। और ज्योग्राफी पॉलिटिक्स करनी है, आराम से करो। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स मत छूओ, ज़्यादा छूना ही नहीं, बस 400 प्लस आना है, बस बहुत है, आ जाएगा इतना। ठीक है, कोई और डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टा पे इट्स राजपूत गर्बित पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए, सीरीज़ भी जल्दी ले आऊँगा, अभी काम चल रहा है भाई उस पर। मेरे को भी CDS FCAT देना है, सो ठीक है, मेरे को भी टाइम कम मिल पाता है, बट नो इशू, आई विल मेक वीडियो। और देखो, थोड़ा शेयर भी कर देना, ठीक है। जो बंदे तुम्हारे फ्रेंड्स जो आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जिन्होंने बैचेस वगैरह नहीं ले रखे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उनको प्लीज़ ये चैनल ना थोड़ा बता देना भाई, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे ना जो आपके लिए साइंस की सीरीज़ लाऊंगा, आई कैन एश्योर यू 40+ कर लोगे। और देखो 40+ कर लोगे ना भाई, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और भी स्ट्रेटजी की वीडियोज़ में लाता रहूँगा, तो दैट विल हेल्प। ठीक है, उन भी बंदों की हेल्प हो जाएगी जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और मेरा अल्टीमेट एम तो यही है कि भाई मैं तुमको एक ना सही डायरेक्शन बता पाऊँ कि तुम लोग ये गलतियाँ मत करो, वरना मेरी तरह 2 बार रिटन में फेल हो जाओगे, जैसे मैंने पहले किया। आई वॉज फेल्ड इन 2 अटैम्प्ट, फर्स्ट 2 अटैम्प्ट रिटन पार्ट। ठीक है, तो वो गलतियाँ जो थी, एक सही गाइडेंस नहीं थी, या फिर क्या गलतियाँ की मैंने, वो सारी वीडियोज़ मैं बता दूंगा, वीडियोस में बता दूंगा। तो अपने ऑनलाइन किसी फ्रेंड को जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, कि भाई इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, यू हैव गुड टाइम, सो यू कैन क्लियर दिस। ठीक है, सो बाकी थैंक यू भाई, एंड लॉट्स आर लव फॉर यू। मैंने देखा कि भाई हाँ, तुम बंदे बहुत सपोर्टिव हो, आई सी योर कमेंट एज वेल, सो थैंक यू एंड लव यू रियली अलॉट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।